morning students, welcome to SST So Simple tutorial. So far we have read about the birth of Weimar Republic followed by Hitler's rise to power. In the previous video we have seen what happened in Second World War. We have seen the defeat of Hitler. But I want to remind you about the genocidal war waged by Germany under the shadow of Second World War. Remember the first video. याद कीजिए हेलमट की कहानी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजियों ने जो जुल्म ढाए वो कहानी अभी बाकी है, तो आज हम उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। The crime that Nazis committed were linked to a system of belief and a set of practices. मतलब यह कि जो अपराध नाजियों ने किए वे एक खास तरह की सोच, मान्यताओं या खास तरह के व्यवहार से रिलेटेड थे। तो आखिर वो सोच क्या थी, वो विचारधारा क्या थी? What was Nazi ideology? Now we will read two things. First, the racial superiority, and the second, Lebensraum. According to Nazi ideology, there is no equality between people, but only a racial hierarchy. Hierarchy means a system of person or things arranged in a graded order. It means organizing people into different ranks or levels of importance. For example, in a society or in a company. मतलब ये जो विचारधारा है नाजी आइडियोलॉजी, ये कहती है सभी समाज को बराबरी का हक ही नहीं है। वो तो रेस के आधार पर या तो बेहतर है या कम है। इनकी नज़र में तो ब्लॉन्ड, ब्लू आइड नॉर्डिक आर्यंस हैं जो सबसे अच्छे हैं, बेहतर हैं, और ये जो हायरार्की की बात हो रही है इसमें वे सबसे ऊपर हैं। और जो ज्यूज हैं वे इस सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर हैं, और बाकी बचे समाज को वे उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से नॉर्डिक आर्यंस और ज्यूज के बीच में कहीं पर भी मानते हैं। आखिर ज्यूज का कसूर क्या था? द ज्यूज वेर इन माइनॉरिटी इन जर्मनी, बट दे वर रिच एंड प्रॉस्परस. They were highly educated. They had their full control over the industries and the press. Most of them were appointed on high posts. Owing to the well-settled condition of the Jews, the Germans hated them. हिटलर ने जर्मनी के इन लोगों के इस एंटी ज्यूइश फीलिंग्स का पूरा फायदा उठाया। He propagated that the Jews were the enemies of the nation. The Jews were the main cause of the defeat of Germany in the First World War. He assured the Germans of expelling the Jews from Germany. The German people gave full support to Hitler due to his anti-Jewish policy. This racist thinking was borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. जब आप बायोलॉजी में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मिलेगी। उनकी ये थ्योरी उनकी फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में 1859 में छपी थी। इन हिज थ्योरी he tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection. Later on, Herbert Spencer added the idea of survival of the fittest. According to this theory, only those species survived on Earth that could adapt itself to the changing climatic conditions. मतलब यह कि जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। मतलब यह जो स्पेसीज बदलती हुई क्लाइमेटिक कंडीशंस में खुद को ढाल लेती है वही पृथ्वी पर जिंदा रहती है। इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि इट इज द एनवायरनमेंट दैट सिलेक्ट्स एंड प्रिजर्व्स द बेटर टाइप्स एंड डिस्ट्रॉयज द अनसुटेबल फॉर्म्स। मतलब कि सिलेक्शन नेचुरल है, इसमें डार्विन ने ह्यूमन इंटरवेंशन की बात कहीं नहीं की। पर ये जो रेसिस्ट लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वे कनकर्ड लोगों पर मतलब पराजित लोगों पर अपने इंपीरियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए इस थ्योरी का सहारा लेते हैं। जैसे कि नाजी आइडियोलॉजी
उनका मानना था कि जो रेस ताकतवर हैं वही जिंदा रहेगी और जो रेस कमजोर हैं वे खत्म हो जाएगी। उनकी सोच में आर्यन रेस ही सर्वश्रेष्ठ है और उसे अपनी प्योरिटी को बचाए रखना है और फाइनली पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करना है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लेबेंसरॉम की। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स लिविंग स्पेस। इट मीन्स एडिशनल टेरिटरी considered by a nation, especially Nazi Germany, to be necessary for national survival. Lebensraum became an ideological principle of Nazism after Hitler rose to power. Germany had a growing population, so the new territories were to be acquired for their settlement. मतलब बढ़ती हुई आबादी को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर कब्जा करना जरूरी था। इससे क्या होगा? जर्मनी का एरिया भी बढ़ जाएगा और वहाँ के रिसोर्स को जर्मनी के डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। हिटलर हैड हिज आइज फिक्स्ड ऑन ईस्टर्न यूरोप। हिटलर की आंख ईस्टर्न यूरोप पर गड़ी हुई थी। इट वॉज दिस रीजन ही बिलीव्ड which could give him more space to accommodate that population and create a vast German empire. As this region was rich in resources like coal, oil and wheat, it would also supply food and raw material to Germany. तो ये जो लेबेंसरॉम की धारणा है, इसका पहला शिकार पोलैंड हुआ। देखिए क्या लिखा है। पोलैंड became the laboratory for this experimentation. We have read that Germany invaded Poland in September 1939. इसके बाद पोलैंड की कहानी का जिक्र 3.2 द रेशियल यूटोपिया में किया गया है। तो आप पेज नंबर 62 खोल लें। Soon after the invasion, Germany divided its portion of Poland into two parts. नॉर्थ-वेस्टर्न पार्ट, जो जर्मनी से लगता हुआ हिस्सा था, उसे जर्मनी से मिला दिया गया और जो दूसरा सेंट्रल पार्ट था उसे जनरल गवर्नमेंट का नाम दिया गया। जनरल गवर्नमेंट को कॉलोनी की तरह ट्रीट किया जाता था। इसी जनरल गवर्नमेंट में कुछ बड़े घेटो और गैस चैम्बर भी बनाए गए थे, जहां ज्यूस को बड़े पैमाने पर मार दिया जाता था। पोलैंड के लोगों को अपना घर और संपत्ति छोड़कर भागने को मजबूर कर दिया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मन्स को वहां बसाया जा सके। आपको याद होगा, हम लोगों ने 2.2 रिकंस्ट्रक्शन में देखा था, हिटलर ने राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया था। ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी ने मिला लिया था। फिर सुडेटनलैंड पर भी कब्जा कर लिया था। जब हम जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप कहते हैं तो इसका मतलब इन्हीं सब जगहों के जर्मन्स की बात हो रही है। समझ गए? इसके बाद पोलैंड के लोगों को जानवरों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट पहुंचा दिया गया। उसके बाद जर्मनी के जितने अनडिजायरेबल थे उनको भी वहीं रखा जाता था। अनडिजायरेबल का मतलब अगले वीडियो में बताऊंगा। पोलैंड के इंटेलेक्चुअल्स को बड़े पैमाने पर मार दिया गया ताकि बचे हुए लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज ना बचे और बस लोगों की गुलामी करते रहे। पॉलिश बच्चे जो आर्यंस की तरह दिखते थे, उन्हें उनके माता पिता से छीनकर रेस एक्सपर्ट्स के पास भेज दिया जाता था। यदि वे रेस टेस्ट पास कर जाते तो उन्हें जर्मन परिवार में पाला जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथालय भेज दिया जाता, जहां ज्यादातर बच्चे मर ही जाते थे। तो आपने देखा कि हिटलर ने पोलैंड का क्या हाल किया। तो आज इतना ही। उम्मीद करता हूं अब आप नाजी वर्ल्ड व्यू समझ गए होंगे। यूनिट 3.2 का नाम रेशियल यूटोपिया है। यहाँ पर जो यूटोपिया शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? इट मीन्स एन आइडियल सोसाइटी और ए परफेक्ट सोसाइटी। दिस टर्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय सर थॉमस मूर इन हिज बुक यूटोपिया। एनटीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स नोट कर लें। ए सोसाइटी वेयर देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, वेयर देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज इक्वालिटी, देयर इज फ्रीडम। अर्थात यूटोपिया का मतलब होता है एक आदर्श राज्य या आदर्श समाज की स्थिति। दरअसल यह एक कल्पना है और ऐसा समाज बनाना संभव नहीं है जहां कोई समस्या न हो और चारों तरफ सुख, शांति और समृद्धि हो।
बट नाजीज वांटेड टू क्रिएट ए यूटोपियन स्टेट बेस्ड ऑन रेस, जहाँ सिर्फ आर्यन रहते हों, जहाँ दूसरों के लिए कोई जगह न हो। तो अब आपको हेडिंग का मतलब समझ आ गया होगा। तो चलते हैं, देखते हैं इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नाजी आइडियोलॉजी was synonymous with Hitler's worldview. Explain this statement or explain the features of racial hierarchy that was promoted by Hitler in Germany. Question number 2, explain the main features of Hitler's geopolitical concept of Lebensraum. Third question, how were the ideas of Darwin and Herbert Spencer adopted by Hitler or Nazis? तो बच्चों, अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। तो अभी हिटलर ने नाजी रेशियल स्टेट की स्थापना के लिए क्या किया वह बाकी है। इसे अगले वीडियो 3.1 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट में डिस्कस करेंगे। तब तक हैप्पी रीडिंग एंड हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।